नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट एट 12 में और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि राघव। सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारतीय एक्सपोर्टर्स को मिली बड़ी राहत। कैबिनेट ने दी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, एक्सपोर्ट गारंटी स्कीम और क्रिटिकल मिनरल्स कानून संशोधन को मंजूरी। दिल्ली धमाका आतंकी घटना, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, घायलों से मिले पीएम। जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी से जुड़े 500 ठिकानों पर छापेमारी, कई आपत्तिजनक सामग्री और डिजिटल उपकरण किए गए जब्त। भारत में बढ़ेगा चीतों का कुनबा, राष्ट्रपति मुर्मू के बोत्सवाना दौरे पर अहम समझौता। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को 8 चीते सौंपेगा बोत्सवाना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के हवाले से दी जानकारी। भारत में टीबी के कुल मामलों में आई 21% की कमी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लाल किले के पास हुए टेरर अटैक पर प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट ने ब्लास्ट पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और 2 मिनट का मौन रखा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रस्ताव को पढ़ते हुए कहा, देश ने 10 नवंबर को लाल किले के पास कार विस्फोट के माध्यम से राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा किए गए एक जघन्य आतंकी हमले को देखा। मंत्रिमंडल निर्देश देता है कि इस घटना की जांच अत्यंत तत्परता और पेशेवर तरीके से की जाए ताकि अपराधियों, उनके सहयोगियों और उनके प्रायोजकों की पहचान कर उन्हें बिना विलंब न्याय के कटघरे में लाया जा सके। मंत्रिमंडल ने सभी घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ ही पीड़ितों की देखभाल और सहायता प्रदान करने वाले चिकित्सा कर्मियों, आपातकालीन क्रियाकर्ताओं के त्वरित प्रयासों की सराहना भी की। मंत्रिमंडल ने निर्देश दिया कि घटना की जांच अत्यंत तत्परता के साथ की जाए, जिससे अपराधियों, उनके सहयोगियों और षड्यंत्रकारियों की पहचान की जा सके और उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके। The cabinet expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost. The cabinet adopted the following resolution. The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. The cabinet prays for the speedy recovery of all those injured and appreciates the prompt efforts of the medical personnel and emergency responders who have been providing care and support to the victims. The cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. The cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. The cabinet also recorded its appreciation for the statements of solidarity and support from many governments around the world. The cabinet notes with appreciation the timely and coordinated response of the authorities, security agencies, and citizens who acted with courage and compassion in the face of adversity. Their dedication and sense of duty are deeply commendable. The cabinet directs that the investigation into the incident be pursued with the utmost urgency and professionalism so that the perpetrators, their collaborators, and their sponsors are identified and brought to justice without delay. The situation continues to be closely monitored at the highest levels of the government. The cabinet reaffirms the government's steadfast resolve
to safeguard the lives and well-being of all Indians, consistent with its enduring commitment to national security and the safety of every citizen. भूटान से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे दिल्ली के LNJP अस्पताल पहुंचे। वो हर उस घायल के पास रुके जो लाल किले के पास हुए भयावह विस्फोट में जख्मी हुआ था। प्रधानमंत्री ने घायलों का हाल जाना, उनके परिवारजनों से बात की, सांत्वना दी, हौसला बढ़ाया। उन्होंने डॉक्टरों से उपचार की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, यह एक अमानवीय घटना है। निर्दोष लोगों पर वार करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। न्याय होगा, ज़रूर होगा। देश के मुखिया ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना की जिन्होंने इस धमाके में अपनों को खो दिया है। आपको बता दें कि सोमवार को लाल किले सिग्नल के पास हुए उस दिल दहला देने वाले विस्फोट में 12 निर्दोष लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 3 बड़े फैसले किए गए हैं। इनमें एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी, निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना को स्वीकृति और महत्वपूर्ण खनिजों पर रॉयल्टी को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक के लिए 25,060 करोड़ रुपए के निर्यात प्रोत्साहन मिशन को मंजूरी दी है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का उद्देश्य भारत के निर्यात को संरचनात्मक रूप से सशक्त बनाना, क्रेडिट एक्सेस आसान करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानकों के अनुरूप निर्यात उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना है। This is a very comprehensive mission which has been approved by the Cabinet under the leadership of our Honorable Prime Minister. आज ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन स्टार्ट किया गया है। 25,060 करोड़ रुपए का इसका आउटले है, 6 साल की इसकी अवधि है और इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे कंप्लीट एक्सपोर्ट के इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का इसमें डिसीजन लिया गया है। प्रायोरिटी उन सेक्टर्स को दी जाएगी जिनके ऊपर अभी एक एडवर्स इम्पैक्ट है, जैसे टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम्स ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स और मैरीन प्रोडक्ट्स है। 2 इसके पिलर्स हैं। पहला पिलर है निर्यात प्रोत्साहन और दूसरा है निर्यात दिशा। फर्स्ट पिलर इज निर्यात प्रोत्साहन एंड सेकंड वन इज निर्यात दिशा। इसका कंप्लीट डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन होगा कॉमर्स मिनिस्ट्री में। निर्यात प्रोत्साहन आपके सामने अभी ये प्राइमरीली क्रेडिट की अवेलेबिलिटी और क्रेडिट की कॉस्ट कम हो उस पर फोकस किया। कैबिनेट ने एक्सपोर्टर्स गारंटी स्कीम के तहत 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे निर्यातकों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोखिम कम होगा। इस स्कीम के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड निर्यातकों को 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगी। जिस तरह का आज ग्लोबल एनवायरनमेंट है, जियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जिसमें कुछ देश अपनी पॉलिसीज़ के कारण बाकी देशों पे तकलीफ ला रहे हैं, तो उन सब तकलीफ़ों से हमारे एक्सपोर्टर्स को कैसे हम प्रोटेक्शन दे सकें, वो इस स्कीम में 20,000 करोड़ रुपीस की इस स्कीम में ये है एडिशनल क्रेडिट सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टर्स एंड स्पेशली दी MSMEs। बहुत डीप कंसल्टेशन हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में, जिसमें फिनेंस मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री और रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स सब ने मिलके एक्सपोर्टर्स के साथ बातचीत की है। तो उन सब का बहुत क्लियर एक रिकमेंडेशन आया था कि जो क्रेडिट की अमाउंट है और जो क्रेडिट का पीरियड है और जो क्रेडिट का कॉस्ट है उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप ले। तो इसके लिए आज 20,000 करोड़ रुपीस का एक नई स्कीम चालू की गई है, जिसमें एडिशनल 20% क्रेडिट कैपिटल, एडिशनल वर्किंग कैपिटल 20% दिया जाएगा एक्सपोर्टर्स को। मान लो किसी की 100 करोड़ रुपीस की एक्सपोर्ट क्रेडिट की लाइन है, वर्किंग कैपिटल की लाइन है।
20 करोड़ और एक्स्ट्रा मिलेगा और उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट कम रहेगी और उसमें भी एक कैप लगाया गया है कि बैंकिंग सेक्टर से इंटरेस्ट होगा तो उसका कैप इतना है, एनबीएफसी से इंटरेस्ट है तो उसका एक कैप है और इंटरेस्ट को प्रीवियस क्रेडिट से 1% लेस पे रखना है। सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रेफाइट, सीजियम, रूबिडियम और जिरकोनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर रॉयल्टी दरों को युक्ति संगत बनाने की भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के इस फैसले से सीजियम, रूबिडियम और जिरकोनियम युक्त खनिज ब्लॉक की नीलामी को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल इन खनिजों को बल्कि इनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम, टंगस्टन, REES और नियोबियम आदि को भी लाभ मिलेगा। तीसरा फैसला लिया गया क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन। कुछ क्रिटिकल मिनरल्स देश में ऐसे हैं अवेलेबल जिनके रॉयल्टी के स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा हाई रॉयल्टी इम्पोज करके रखी हुई थी, उनको रिड्यूस किया गया। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है जिरकोनियम, तीसरा है रूबिडियम और चौथा है सीजियम। इन तीनों पे आज कैबिनेट में फैसला हुआ कि इनके ऊपर जो रॉयल्टी है वो रिड्यूस की जाएगी जिससे कि इनका प्रोडक्शन बढ़े। और ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका देश में बहुत उपयोग है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में, सब में इनका बहुत उपयोग है। तो ये जो फैसला लिया गया है आज, उससे जो नए ब्लॉक्स अभी ऑक्शन होने वाले हैं, ग्रेफाइट, जिरकोनियम, रूबिडियम और सीजियम के नए ब्लॉक्स जो ऑक्शन होने वाले हैं, उसमें अच्छा पार्टिसिपेशन भी आएगा और ओवरऑल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में इससे मदद मिलेगी। ओवरऑल इसके लिए लॉ को अमेंड करने की ज़रूरत, केवल स्केड्यूल को अमेंड करने की ज़रूरत है, लॉ के मेन टेक्स्ट में अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं। भारत और बोत्सवाना ने बुधवार को औपचारिक रूप से 8 चीतों को अफ्रीकी देश से भारत लाने के समझौते की घोषणा की है। यह घोषणा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बोत्सवाना यात्रा के दौरान की गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने समकक्ष राष्ट्रपति ड्यूमा गिदोन बोको और बोत्सवाना की जनता का आभार जताते हुए कहा, हम इन चीतों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति बोको ने कहा कि उनकी सरकार गुरुवार को प्रतीकात्मक रूप से इन चीतों को राष्ट्रपति मुर्मू के हवाले करेंगी। दोनों राष्ट्राध्यक्ष आज एक विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे जिसमें 8 पकड़े गए चीतों को मोकोलोदी नेचर रिजर्व के क्वारंटाइन एरिया में छोड़ा जाएगा। यह भारत को बोत्सवाना द्वारा चीतों के प्रतीकात्मक हस्तांतरण का हिस्सा होगा, जो प्रोजेक्ट चीता और वन्य जीव संरक्षण की साझा पहल के तहत किया जा रहा है। It gives me special pleasure to note that Botswana is to reintroduce cheetahs in India under Project Cheetah. This is a unique wildlife conservation initiative of Government of India which aims to restore the cheetah to India's ecosystems. I must thank President Boko and the people of Botswana to agreeing to send their cheetahs to India. We will take good care of them. दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। घाटी में जमाते इस्लामी समेत प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लगभग 500 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं पर ये छापेमारी की गई, जिनसे संकेत मिलता है कि JEI से जुड़े तत्व विभिन्न मोर्चों पर अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर घाटी के 10 जिलों श्रीनगर, गांदरबल, बड़गांव, बारामूला, बांदीपोरा, कुपवाड़ा, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। JEI सदस्यों और उनके सहयोगियों के आवासों और परिसरों पर तलाशी भी की गई।
यह कार्रवाई ज़मीनी स्तर पर आतंकवादी पारिस्थितिक तंत्र और उसके ढांचे को ध्वस्त करने के सतत प्रयासों के तहत की गई। छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। कई JEI सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। आतंकवाद को सहायता देने वाले नेटवर्क का पता लगाने और उसे नष्ट करने के लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। गुजरात में आतंकी साजिश के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अलकायदा से संबंधित अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की तलाश में 5 राज्यों के करीब 10 स्थानों पर छापेमारी की है। एजेंसी के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर बताया कि NIA की टीम ने बुधवार को पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा और गुजरात के अलग अलग संदिग्धों और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों में छापेमारी की। अधिकारी ने यह भी बताया कि कई डिजिटल डिवाइस और कागजात जब्त किए गए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि यह मामला 2023 में दर्ज किया गया था और इस मामले में 4 बांग्लादेशी नागरिकों को तलाश किया जा रहा है, जिनकी पहचान मोहम्मद सोजिब मियान, मुन्ना खालिद अंसारी, अजरुल इस्लाम और अब्दुल लतीफ़ के तौर पर की जा चुकी है। इन लोगों ने फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ की थी। बयान में कहा गया है वे प्रतिबंधित अलकायदा आतंकवादी संगठन से जुड़े पाए गए। ये लोग बांग्लादेश में अलकायदा के गुर्गों के लिए पैसे जमा करने और उसे उन्हें ट्रांसफ़र करने में शामिल थे और मुस्लिम युवाओं को एक्टिव करने में भी शामिल पाए गए। NIA ने 10 नवंबर 2023 को अहमदाबाद की एक स्पेशल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। भारतीय चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत अब तक 37 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। ये गणना फॉर्म बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं को वितरित किए गए हैं। SIR के दूसरे चरण के तहत 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिहाज से इस महत्वाकांक्षी अभियान में लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। आयोग ने बुधवार को जारी एक बुलेटिन में कहा कि पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए अब तक 6 करोड़ 80 लाख यानी 88.8% गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR आयोजित की जा रही है उनमें अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और लक्षद्वीप शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी में भी SIR जारी है। SIR का दूसरा चरण औपचारिक रूप से इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर को गणना फॉर्म के वितरण के साथ ही शुरू हो गया था। यह 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि BLO घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित कर रहे हैं। SIR से इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। भारत में पिछले एक दशक में तपेदिक के कुछ मामलों में 21% की कमी आई है, जो वैश्विक औसत 12% से लगभग 2 गुना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश में टीबी रोगियों की संख्या 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 से घटकर 224 में प्रति लाख 187 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत के बेहतर केस फाइंडिंग दृष्टिकोण ने निदान और उपचार कवरेज में वृद्धि की है। साथ ही बहु औषधि प्रतिरोधी टीबी के मामलों में कई खासा वृद्धि नहीं हुई है। तपेदिक के कारण होने वाली मृत्यु दर भी 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 28 से घटकर पिछले वर्ष प्रति लाख 21 हो गई है। सरकार देश से टीबी को खत्म करने के लिए
टीबी मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और निक्षय पोषण योजना सहित कई पहलों को लागू कर रही है। पंजाब और हरियाणा में 15 सितंबर से 10 नवंबर तक पराली जलाने की 4300 घटनाएं आई हैं। उच्चतम न्यायालय को सूचित की गई हैं। गौरतलब है कि 15 सितंबर से 10 नवंबर के बीच पंजाब में 4000 और हरियाणा में पराली को जलाने की 360 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 1500 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को बंद किया गया। दिल्ली एनसीआर के लिए गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोर्ट के निर्देशों के अनुसार 2 अलग-अलग हलफनामों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ में 3 नवंबर को CQM को हलफनामे के जरिए दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का विवरण देने का निर्देश दिया था। अक्टूबर में जीएसटी दरों में कटौती और खाद्य वस्तु की कीमतों में खुदरा महंगाई पिछले 10 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बीते महीने खुदरा महंगाई की दर सितंबर के महीने में 1.4% के मुकाबले कम होकर अक्टूबर के महीने में 0.25% दर्ज हुई। साल 2015 में शुरू हुई मौजूदा CPI श्रृंखला की यह सबसे निचली मुद्रास्फीति की दर है। इस श्रृंखला में 2012 के मूल्य स्तर को रेफरेंस के तौर पर लिया गया है। NSO के मुताबिक सब्जी, फल और अंडा जैसे खाने का सामान सस्ता होने के साथ आम लोगों के उपयोग में आने वाली 380 वस्तुओं पर जीएसटी कटौती से महंगाई दर में नरमी नजर आई है। आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति घटी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 0.25% और शहरी क्षेत्रों में 0.88% रही। अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति की दर लगातार 5वें महीने नकारात्मक दर्ज हुई और अक्टूबर में यह -5.18% दर्ज हुई। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में 14 नवंबर से 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू होने जा रहा है, जो आगामी 27 नवंबर तक चलेगा। इस बार इस मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत है, जो देश की एकता और विविधता को दर्शाती है। बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश साझेदार राज्य के रूप में भाग लेंगे, जबकि झारखंड को फोकस राज्य के रूप में चुना गया है। संयुक्त अरब अमीरात, चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया और मिस्र सहित 12 देशों के विदेशी प्रदर्शक 14 दिन चलने वाले इस मेले में हिस्सा लेंगे। मेले का समय सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक रहेगा। भैरव रोड की ओर से 3 व 4 और मथुरा रोड पर 6 व 10 नंबर प्रवेश द्वार से लोग आवाजाही कर सकते हैं। व्यावसायिक दिन 14 से 18 नवंबर के बाद इसे 9 से 27 नवंबर तक आम जनता के लिए खोला जाएगा। भारत मंडपम के द्वारों पर टिकट की बिक्री नहीं होगी। टिकट DMRC के 55 मेट्रो स्टेशन से ली जा सकेगी। टिकट दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सारथी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी खरीदी जा सकेगी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जन का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की भूटान यात्रा पर थे। चलते चलते आपको दिखाते हैं इस यात्रा की कुछ झलकियां। साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए संसद टीवी। भारत और भूटान
सिर्फ सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से भी जुड़े हैं। हमारा रिश्ता वैल्यूज का है, इमोशंस का है, पीस का है, प्रोग्रेस का है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।